Hello everyone. Today we are here to discuss about the targeted drug delivery system. Under the heading of targeted drug delivery system, we will discuss the concept and approaches for targeted drug delivery system, advantages and disadvantages of targeted drug delivery system, introduction to liposomes, neosomes, nanoparticles, monoclonal antibodies, and application of targeted drug delivery system. Now, learning objective of this session. After attending this session, learner will be able to define terminology related to targeted drug delivery system. You will understand the concept and approaches used for targeting. We will identify the advantages and disadvantages of targeted drug delivery system. We will discuss the liposomes, neosomes. You will understand nanoparticles, and we will describe the monoclonal antibodies and also discuss the applications of targeted drug delivery system. Now, introduction to targeted drug delivery system. A special form of drug delivery system where the pharmacologically active agents or medicament is selectively targeted or delivered only to its site of action or absorbed and not to the targeted organ or tissue or cells. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जहां पर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव और एजेंट्स को और मेडिकामेंट को हम सेलेक्टिवली टारगेट करते हैं इट्स साइट ऑफ एक्शन पर, और साइट ऑफ एक्शन पर ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ना कि नॉन टारगेटेड ऑर्गन पर और टिश्यू पर. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी implies for selective and effective localization of pharmacologically active moiety at pre-identified, pre-selected target in therapeutic concentration, while restricting its action to non-target normal cellular linings, thus minimizing toxic effects and maximizing therapeutic index. टारगेट जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वह सिलेक्टिव है एंड इफेक्टिव लोकलाइजेशन करता है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मोइटी का. और कहाँ पर? प्री आइडेंटिफाइड साइट रहेगी, प्री सिलेक्टेड टारगेट रहेगा, वहां पर सिलेक्टिव और इफेक्टिव लोकलाइजेशन करता है थेरापेटिक मोइटी का, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मोइटी का. और कंसंट्रेशन जो रहेगी वो थेरापेटिक कंसंट्रेशन में इसको लोकलाइजेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या रिलीज करता है. वाइल रेस्ट्रिक्टिंग इट्स एक्शन टू नॉन टारगेट टिश्यू, और साथ में जो नॉन टारगेट टिश्यू, नॉन टारगेट नॉर्मल सेलुलर लिनिंग्स होते हैं वहां पर इसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करता है, वहां पर ड्रग की कंसंट्रेशन नहीं पहुंच पाती है. कहाँ? सिर्फ जो टारगेट टिश्यूज होते हैं, टारगेट साइट्स होते हैं, सिर्फ वहीं पर ड्रग की कंसंट्रेशन पहुंच पाती है, जिसके कारण जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं उसको हम मिनिमाइज कर पाते हैं और थेरापेटिक इंडेक्स को हम मैक्सिमाइज कर पाते हैं. Now, concept of drug targeting. The first report published on targeting was Paul Harris at 1902 as magic bullet. Bengums was observed on phospholipid hexagonal liquid crystals that they are pre-selective to ion as like biomembrane. बेंगम ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया कि जो फास्फोलिपिड्स होते हैं, हेक्सागोनल लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, वह प्री सेलेक्टिव होते हैं आयंस के लिए या बायोमेम्ब्रेन्स के लिए. उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया, लेट टू डिस्कवर द newer molecules, that is artificial vesicles based on phospholipids, amphiphils, are called Bengham liposomes और बेंगोसोम्स in 1965. तो बेंगम ने 1965 में इसको ऑब्जर्व किया, फास्फोलिपिड को ऑब्जर्व किया कि वह बायोमेम्ब्रेन के लिए प्लीज सेलेक्टिव होते हैं, और तो उन्होंने डिस्कवर किया है, न्यू मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया, आर्टिफिशियल वेसिकल्स को डिस्कवर किया जो कि फास्फोलिपिड के ऊपर बेस्ड थे, और जिन्होंने उनका नाम दिया बेंगम लिपोसोम्स और बेंगोसोम्स. लेटर ग्रेगोरिडिस in 1981 who described a drug targeting
by the name of older drugs in newer class using novel drug delivery system. इसके बाद ग्रेगोरिडिस ने 1981 में डिस्क्राइब किया कि जो ड्रग टारगेटिंग होती है उसको उन्होंने नाम दिया कि ओल्ड ड्रग को न्यू क्लॉथ में, older drug in newer class or using the novel drug delivery system. Rationale of targeting drug delivery system. क्या रैशनल है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, क्यों हम टारगेट करना चाहते हैं, वो इस हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे फ्री ड्रग है जो कि कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी फॉर्म को यहाँ पे दर्शाता है, और यहाँ पे ड्रग एंड कैरियर जो कि आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्री ड्रग है वो नॉन टारगेट साइट पर उसकी एक्सेस है, एफिनिटी है, और उसका टॉक्सिक इफेक्ट भी हमें यहाँ पे मिलेगा नॉन टारगेट साइट पे जो नॉर्मल सेल्स हैं। और टारगेट साइट पर इसकी एक्सेस कम रहेगी, नो एक्सेस, नो एफिनिटी एंड लिमिटेड इफेक्ट यहाँ पे मिल पाता है अगर हम कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म की बात करते हैं। और बायो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण इसका इनएक्टिवेशन हो जाता है और लेस थेरापेटिक इफेक्ट मिल पाता है। तो नॉन टारगेट साइट पर एक्सेस है, टारगेट साइट पर कम एक्सेस है, और बायो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण यह इनएक्टिवेट हो जाता है और उसका लेस थेरापेटिक इफेक्ट होता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म के। लेकिन वहीं हम अगर बात करते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, तो यहाँ पे ड्रग एंड कैरियर, ड्रग कैरियर्स में होता है, और जिसके कारण टारगेट साइट पर ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा टारगेट की जाती है। ठीक है, और नॉन टारगेट साइट पर इसकी एक्सेस नहीं होती है, इसकी एफिनिटी नहीं होती है, और लिमिटेड इफेक्ट मिल पाता है नॉन टारगेट और नॉर्मल सेल के ऊपर। तो इसका ये एडवांटेज हो जाता है। और बायो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण इम्प्रूव थेरापेटिक अवेलेबिलिटी हमको यहाँ पे देखने मिलती है। तो दिस इज अबाउट द रेशनल ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाउ रीजंस फॉर ड्रग टारगेटिंग। क्या क्या रीजंस हैं क्यों हम ड्रग टारगेटिंग करना चाहते हैं? ड्रग की इनस्टेबिलिटी के कारण, ड्रग के लो एब्जॉर्प्शन के कारण, शॉर्ट हाफ लाइफ के कारण, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, या लो स्पेसिफिसिटी के कारण, लो थेरापेटिक इंडेक्स के कारण हम ड्रग टारगेटिंग करते हैं, और जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इनको हम दूर कर पाते हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्या क्या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, बायोकम्पेटिबल, बायोडिग्रेडेबल एंड फिजिकोकेमिकल केमिकली स्टेबल होना चाहिए इन विवो एंड इन विट्रो। इट should be restrict drug distribution to the target cell or tissue or organ, and should have uniform capillary distribution, controllable and predictable rate of drug release. Drug release dose does not affect the drug action, therapeutic amount of drug release, minimal drug leakage during the transit. Carriers used must be biodegradable or readily eliminated from the body without any problem, and no carrier induced modulation of disease state. The preparation of the delivery system should be easy or reasonably simple, reproductive एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टी होना, कैसा आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए कि नॉन टॉक्सिक हो, बायोकम्पेटिबल हो, बायोडिग्रेडेबल हो, फिजिको केमिकली स्टेबल हो, और टारगेट साइट पर ही ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करे, रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और प्रेडिक्टेबल रेट रहे, कंट्रोलेबल रेट रहे, और ड्रग रिलीज ड्रग के एक्शन को अफेक्ट ना करे, थेराप्यूटिक अमाउंट में ड्रग को रिलीज करता करे, और इसके बाद मिनिमम लीकेज उसमें से हो ड्यूरिंग द ट्रांसिट टाइम, और कैरियर जो भी हम यूज करने वाले हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो और रियडली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से उसको एलिमिनेशन आसानी से उसका एलिमिनेशन हो जाए, ऐसा होना चाहिए। कोई भी कैरियर के कारण कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, कोई डिसीज स्टेट नहीं डेवलप नहीं होना चाहिए, और इसका जो भी प्रिपरेशन हम करते हैं वो भी सिंपल होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो दीज आर द ideal characteristic of the targeted drug delivery system. Now, advantages of targeted drug delivery system. Drug administration protocol may be simplified.
Toxicity is reduced by delivering a drug to its target site, thereby reducing harmful systemic effects. Drug can be administered in a smaller dose to produce the desired effect. Avoidance of hepatic first pass metabolism, enhancement of absorption of target molecules such as peptides and particulates. Dose is less compared to the conventional drug delivery system. No peak and valley plasma concentrations, and selective targeting to infectious cells as compared to the normal cells. तो these are the advantages. कि क्या क्या एडवांटेज हैं कि जो भी प्रोटोकॉल है वो सिंपलीफाई हो जाता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, और टॉक्सिसिटी को रिड्यूस हो जाती है, डोज कम हो जाती है, और हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम अवॉइड कर पाते हैं, और ड्रग के एब्जॉर्प्शन को टारगेटेड साइट पर टारगेटेड मॉलिक्यूल को के एब्जॉर्प्शन को हम एनहांस कर पाते हैं, जैसे पेप्टाइड्स को और पार्टिकुलेट्स को ड्रग लेस हो जाती है एज पर द कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और इसमें जो पीक बेले प्लाज्मा कंसंट्रेशन इफेक्ट होता है वो इसमें नहीं हो पाता है, और सेलेक्टिव टारगेटिंग हम डिसीज सेल इन्फेक्टियस सेल्स पर सेलेक्टिव टारगेटिंग कर पाते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ target drug delivery system, rapid clearance of targeted system, immune reaction against the intravenous administered carrier system, insufficient localization of targeted system into the tumor cells, diffusion and redistribution of the released drugs, require highly sophisticated technology for formulation, requires skill for manufacturing, storage, and administration. Drug deposition at the target site may produce toxic symptoms, and difficult to maintain stability of the dosage form, e.g. resealed erythrocytes have to be stored at 40 degrees centigrade. Drug loading is usually low, e.g. as in my cells. Therefore, it is difficult to predict fix the dosage regimen. तो कुछ डिसएडवांटेज हैं कि रैपिड क्लियरेंस ऑफ द टारगेट सिस्टम, इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती हैं इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, इनसफिशिएंट लोकलाइजेशन होता है टारगेट सिस्टम पर, एंड डिफ्यूजन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीज ड्रग, फिर से डिफ्यूजन हो जाता है, फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता है, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायर्ड स्किल्स की ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ड्रग डिपोजिशन एट द टारगेट साइट में प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी, और टारगेट साइट पर ड्रग का डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण टॉक्सिसिटी सिम्टम वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, और ड्रग लोडिंग भी कम हो पाती है. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. नाउ अप्रोचेज फॉर ड्रग टारगेटिंग, कौन कौन सी अप्रोच हैं जिसके द्वारा हम ड्रग टारगेटिंग कर पाते हैं. फर्स्ट वन इज द कंट्रोलेबल एंड controlling the distribution of drug by incorporating it into the carrier का incorporate करके हम ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर पाते हैं. सेकंड, altering the structure of the drug at molecular level पर ड्रग की स्ट्रक्चर को अल्टर करके भी हम टारगेटिंग कर पाते हैं. बाय कंट्रोलिंग द इनपुट ऑफ द ड्रग इनटू द बायो एनवायरनमेंट टू इंश्योर ए प्रोग्राम्ड एंड डिजायर्ड बायो डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की इनपुट को बायो एनवायरनमेंट में कंट्रोल करते हैं जिसके कारण हम प्रोग्राम्ड एंड डिजायर्ड बायो डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर पाते हैं. तो दीज आर द अप्रोचेज फॉर ड्रग टारगेटिंग. नाउ टाइप्स एंड लेवल ऑफ टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कौन कौन सी टाइप्स हैं जिससे हम कौन कौन से लेवल हैं जिससे हम टारगेटिंग कर पाते हैं. पैसिव टारगेटिंग, एक्टिव टारगेटिंग, इनवर्स टारगेटिंग, डुअल टारगेटिंग, डबल टारगेटिंग एंड कॉम्बिनेशन टारगेटिंग. इनको हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. तो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू ऑल एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी. थैंक यू.